from CDSC Hyderabad, and he has gotten more than 50 certification courses of national as well as from Ministry of Electronics NIT. He is the recipient of 2 national awards for cybersecurity and 2 commendations from Air Vice Marshal, Indian Air Force. He has 3 books on cybersecurity illustrated with national and international publications. He has been a resource person in Indian Air Force, has been on various programs on TV channels and radio in Jammu and Delhi on cyber awareness. I also welcome Srimati Neeta Verma. She is an advocate and a member of Supreme Court in India. She is the State President Human Rights Mission, Jammu and Kashmir. She is why I have asked you this question. Why IT Act 2000 was passed? Can anybody tell me? Without googling anything, you should have this thing in mind that IT Act 2000 was passed to legalize the e-commerce. Because everything is online now, you can go for the shopping, you can go for the any business virtually, and we are now reached to the stage when Web3 is in process and there is a rolling out of 5G in Jammu and Kashmir also. So Web3 means your metaverse now. Are you comfortable in English or should I speak in layman's language? In a vernacular. You are comfortable? Okay. Of the smartphone, this computer. Whenever I would refer the term computer here, it means I am discussing smartphone, your digital devices, all these, your Siri, your Internet of Things, your digital watch, your medical appliances. All things are to be included now in the definition of the computers. What is crime? Any illegal act for which you have a punishment. What is computer crime? Any fiddling with the computer, when you do any illegal act with the computer, that is a computer crime. But what is cyber crime? Can anybody define it? I will give a book, because this should be a facilitative kind of thing between you and me, because it's not possible that you are not knowing the cyber crime and cyber threats. Is there anybody who can define the cyber crime? Can anybody tell me what is that in human so intriguing that makes him to click a link and that is making him to be defrauded by the fraudster? What is that thing? Can anybody tell me? I will gift this book. Anybody? Are you understanding my question? What is that in human being which is making him to be trapped by the cyber fraudsters? What is that? Desires. पता है कि डेडली सिंस क्या है और उसके बाद कौन सी चीज टेम्पटेशन है कि है मैं हाँ बोलो बोलो क्यूरियोसिटी वेरी गुड किसी को हो न सका उसके कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुकाए फिरता है. Sir, thank you so much for sparing time for us. On behalf of principals and organizers, I accord you a genial welcome, sir. Your presence indeed is a source of motivation for all of us. Thank you so much, sir, for being here. We are equally delighted to have with us Advocate Ms. Neeta Verma, State President Human Rights Mission, Jammu and Kashmir. She is really walking extra mile and taking extra efforts to keep our daughters, sisters, girls and society as a whole safe and protected. Ma'am, unless someone like you hears a whole awful lot, nothing is going to get better. It's not for sure. And I must compliment for her that she has been instrumental in bringing a visible change in the society. As
Serving the society is her prime agenda. Thank you so much, ma'am, for your august presence. Your presence here is definitely a source of motivation and honor for all of us. Basically, today, you know, the world is more digitally connected than ever before. We all have become digital citizens. We all have become netizens, but without netiquettes, without having knowledge about cybercrime and associated laws. And the result is, we are siphoned of our money, our data, and to top it all, we end up in compromising our privacy and our identity. And these loopholes and weaknesses expose us to cyber criminals, and they are taking advantage of our ignorance and our innocence. Earlier, when child used to come back home, mothers used to feel satisfied. They used to take a sigh of relief. Now, yes, our child are under our supervision, under our care, and they don't have any sort of danger of anybody from outside world. But now, in this digital era, even if the child is with us, the doors of unknown criminals are opening straightway in the bedrooms and study of our children, and we are snatched off our that blessing of peace. नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। साइबर क्राइम, इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा और कई बार अपने इर्द गिर्द भी इस तरह की चीज़ें होते हुए भी देखा होगा। आजकल जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। इसमें ना केवल हमारी जम्मू कश्मीर की बच्चियां पर, बल्कि जो बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं और इवन की मेल, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और साइबर क्राइम से बचना आजकल ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले जो हैं देखने को मिलते हैं और लगातार सरकार अहम कदम उठाती है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि साइबर क्राइम से किस तरह से बचा जाए। पर फिर भी ना जाने क्यों ये लोग कहाँ से आते हैं, जो लोग बच्चों को, छोटे बच्चों को, ख़ास तौर पर फीमेल्स को हरास करते हैं और इसके चुंगल में फंसा देते हैं। आज इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे जम्मू के कॉमर्स कॉलेज में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया EVS डिपार्टमेंट द्वारा। क्या था ये सेमिनार, क्या कुछ इसमें बात की गई, क्या चीज़ें थी जिसके रिलेटेड लोगों को जागरूक किया जाना था, और उन सब के रिलेटेड आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी हुई है डॉक्टर नाज़िया रसूल, ये यहाँ की कोऑर्डिनेटर थी इस सेमिनार की। मैम, क्या था ये सेमिनार, बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बात की गई? जी मैं डॉक्टर नाज़िया रसूल लतीफ़ी, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ एनवायरमेंटल साइंसेज़ की, और आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज़ इन दिस कॉलेज। आज जो हमने सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करवाया है ये साइबर क्राइम पे है और सेक्सुअल हैरासमेंट पे। बट हमने ये इस सेमिनार ऑर्गेनाइज़ का जो बेसिक पर्पज़ वो था कि आपने देखा होगा साइबर क्राइम में जो नेटिजन्स हैं या जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो भी बच्चे ही हैं, वो भी यंगस्टर्स ही हैं, और मैक्सिमम जो विक्टिम्स हैं वो भी बच्चे ही हैं। बच्चे मींस यंगस्टर्स हैं। इसलिए हमने टारगेट ग्रुप को ही हमारा एम्फेसिस था कि हम टारगेट ग्रुप को ही समझाएं, क्योंकि अब दिन ब दिन हमारी डिज़ायर, हमारी नीड्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और हमें गलत और सही की पहचान हम करना भूल चुके हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि हम बच्चों को बताएं कि एक्चुअली साइबर क्राइम है क्या, कौन कौन सी चीज़ें साइबर लॉ के तहत साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी में आती हैं। क्योंकि जैसे कोई बच्चा कहता है कि हमने वेबसाइट से कुछ डाउनलोड किया, तो क्या वो क्राइम है, या हमने किसी की मजाक में वो किसी की फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं। तो हमें उनको जागरूक करना था, तो इसलिए हमने साइबर क्राइम पे एक सेमिनार रखा, जिसमें हमने बहुत ही वर्सटाइल पर्सनालिटी मिस्टर यासीन किचलू, जो SSP सिक्योरिटी सिविल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के हैं, ही इज़ कंसिडर टू बी, कि आप हमें हमारे बच्चों को और हमारे प्रोफेसर्स को इसके बारे में नॉलेज दें। मैम, आपने यहाँ पे बात की कि साइबर क्राइम के रिलेटेड जो सबसे टारगेट किया जाता वो है हमारे युवा, पर युवाओं को इस चीज़ से बचाने के लिए क्या मेन चीज़ रहती होगी आपके अकॉर्डिंग? कि सबकी, मैं ऐसे कहूँ कि फ़ोन ज़िंदगी हो गई है। अगर एक सेकंड के लिए भी फ़ोन आपकी नज़र से परे हट जाता है ना, तो इंसान परेशान हो जाता है। और वहीं पे आजकल की ऐसे किस्से जो है सुनने को मिलते हैं जो काफ़ी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि मेन चीज़
किस चीज़ पर फोकस रहना चाहिए? जी, बेसिकली मैं इसमें कहूँगी कि सोसाइटी के हर इसमें 3-4 पहलू पे हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले पेरेंटिंग, प्रॉपर पेरेंटिंग, मॉरल वैल्यूज़ आर टेकिंग बैक सीट नाउअडेज़। माँ बाप को वक्त ही नहीं है कि वो बच्चों को दें, और बच्चे अगर इवन इफ़ द मदर इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ अ होम मेकर, और फादर इज़ एट होम, वो बच्चों के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। दे आर बिजी विद देयर मोबाइल फ़ोन्स, एंड द सेम इज़ द केस विद किड्स। बच्चे भी मोबाइल के साथ ही बिज़ी होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि दिन में कम से कम एक, अगर तीनों वक्त हम बच्चों के साथ बैठ के खाना ना खाएं, पर एक वक्त हम ज़रूर ऐसा निकालें जिस वक्त हम पूरी की पूरी फैमिली बैठे और जनरल एक बात एक दूसरे से डिस्कस करें, उन्हें बताएं क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो सफ़ेद, वो तो क्लीन पेपर की तरह, आप जो उस पर लिखेंगे उस पर लिखा जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स को प्रॉपर पेरेंटिंग की, उनको मॉरल वैल्यूज़ बताना, उनको ठीक गलत की पहचान बताना। फिर बात आ जाता है टीचर्स का। टीचर्स भी, मैं भी एक टीचर हूँ, पर हमारा रोल सिर्फ उनको 2 लफ्ज़ ही नहीं पढ़ाना है, हमें उनको ज़िंदगी की जो हकायत है, ज़िंदगी के जो रियलिटीज़ है, जो मॉरल वैल्यूज़ है, हमें वो उन्हें इम्बाइब करवानी है। हमें उन्हें सिर्फ वो अपना जो हम स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो ही नहीं, हमें उन्हें बाकी ज्ञान देने की भी ज़रूरत है कि वो सही और गलत की पहचान कर सकें। देन अनफॉर्चुनेटली जैसे आजकल जब बच्चा घर पे होता था, माएँ बड़ी खुश होती थी जब बच्चा स्कूल से घर आता था, तो वो कहती थी बस अब हमारी नज़र के सामने है, अब कोई ख़तरा नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली इस फ़ोन ने हमारा वो सुकून, वो चैन भी हमसे छीन लिया है। तो बहुत ज़रूरत है कि जो हमारे पास जो ये फ़ोन है, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, इसको हमें अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं विच कम अंडर साइबर क्रिमिनल एक्ट। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे दी न्यूज़ नाउ के माध्यम से आजकल के बच्चों को? क्योंकि बड़े बच्चों की तो बात करें, बच्चों को पता भी रहता है ये गलत है, फिर भी वो गलत की ओर बढ़ते हैं। पर छोटा बच्चा जो अपने बड़े भाई बहनों को देखकर ना उस गलत रास्ते पर चलना शुरू कर जाता है, उसको संभालना और उसको संभलता देखना बहुत ज़रूरी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो टीचर ही हूँ, तो मैं अवेयरनेस पे ही फोकस करूँगी। तो फिर से बात वही आ जाती है कि क्योंकि पहली गोद जो है, पहली जो शिक्षा है वो बच्चे को माँ की गोद से ही मिलती है, मतलब घर से ही मिलती है। तो ऑब्वियसली जो छोटा बच्चा होगा वो पहले घर में ही होगा, तो घर बड़ों को पहले बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। उन्हें पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या नुकसानात हैं, और वो सब चीज़ें जो है अपने बच्चों को बतानी हैं, और उनको उनकी डिज़ायर्स को उन्हें बताना है कि क्या सेम वही कि उन्हें बताना है कि जितनी हम अपनी डिज़ायर्स को महदूद रखें, जितना रिस्ट्रिक्टेड रखें, उतने हम ज़्यादा खुश रहेंगे और उतने ज़्यादा हम चीज़ों से दूर रहेंगे। तो अवेयरनेस जो है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वी नीड टू अवेयर आवर किड्स, आवर जनरेशन, टू लेट देम नो अबाउट ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग ऑन एंड आर डिस्टर्बिंग आवर सोसाइटी। थैंक यू सो मच मैम। तो ये आपने देखा कि किस तरह से साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार भी और हमारे जो टीचर्स हैं वो लगातार कोशिश करते हैं कि बच्चों को जागरूक किया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए कि वो इस रास्ते पे ना चले। क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन के केसेस जो है आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम से रिलेटेड बच्चों को जो है हरास किया जाता है, फीमेल्स को हरास किया जाता है, तो उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। बट रोकने से पहले अगर उस चीज़ की समझ होगी तो तभी हम उसे रोक पाएंगे। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम आए थे कॉमर्स कॉलेज में, यहाँ पे एक सेमिनार जो है कंडक्ट किया गया था ईवीएस डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें जागरूक किया गया लगातार बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने आगे फ्रेंड सर्कल में ये बात कर पाएँ कि इस तरह की चीज़ें रहती हैं और इस तरह से हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा के साथ मैं अर्षा वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ, जम्मू।